بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا نامہ کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد، جس میں آپ سن سکیں گے دنیا بھر سے آج کی اہم خبریں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کی جائے گی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مانسیرا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کر جاتا ہوں کہ میں فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا۔ میں جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پنڈال سے ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ برے اور مشکل وقت میں پوری کوشش کی ہے کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار رہ چکا ہوں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ نوجوانوں کو سکھانا چاہتا ہوں کہ تباہی اور عظمت کا راستہ کون سا ہے۔ صالح محمد خان کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 سے 25 کروڑ روپے رکھے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خریدنے کے لیے 25 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے۔ صالح محمد کے پاس بھی دو راستے تھے کہ وہ پیسے لے کر کہتے کہ عمران خان بہت غلط آدمی ہے۔ سچ اور حق کا راستہ آسان نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پاس کرائی ہے۔ اب ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا۔ آزادی رائے کے نام پر مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ 30 سال سے فضل الرحمان سیاست میں ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کیا؟ فضل الرحمان 30 سال سے دین کے نام پر سیاست کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کر ہی ملک اٹھے گا۔ ملک کو اٹھانا ہے تو مدینے کی ریاست کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ معاشرے میں عدل و انصاف کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ بھارت سے اس وقت دوستی کریں گے جب کشمیریوں سے انصاف ہوگا۔ بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، پہلے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بحال کیا جائے۔ اس ملک کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے، کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ آپ کو دنیا میں ہر پاسپورٹ کی عزت کروا کر دکھاؤں گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہو، بدی کے خلاف جہاد کرے۔ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ اچھے اور برے کی جنگ میں کہیں نیوٹرل ہوں۔ بچوں کی حوالگی کا کیس، برطانوی عدالت نے دبئی کے حکمران کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ برطانوی ہائی کورٹ نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے بچوں کو ان کی سابق اہلیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ قطر کے سرکاری خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق لندن ہائی کورٹ میں اپنے بچوں کی سرپرستی کے لیے لڑ رہے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کیس ہار گئے ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز میں فیملی ڈویژن کے صدر نے شیخ محمد کے خلاف اپنے حتمی فیصلے میں ان کے بچوں کو ان کی سابقہ اہلیہ حیا، جو کہ اردن کے شاہ عبداللہ کی سوتیلی بہن بھی ہیں، ان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ جج نے کہا ہے کہ حیا کو 2 بچوں 14 سالہ جلیلہ اور 10 سالہ زید کی تعلیم اور صحت سے متعلق تمام معاملات طے کرنے چاہیے، تاہم شیخ محمد کو ان معاملات سے باخبر رکھا جائے۔ عدالت نے اس سے قبل کہا تھا کہ شیخ محمد سے حیا کی جان کو خطرہ پیدا ہوا۔ شیخ محمد نے دوسری شادی کر کے سابقہ اہلیہ سے ہوئی 2 بیٹیوں کو اغوا کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، جبکہ حیا اور ان کے وکلاء کے فونز اسرائیلی سیکیورٹی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ہیک کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ شیخ محمد کو بچوں کی طویل مدتی دیکھ بھال کے ثبوت کے طور پر 554 ملین پاؤنڈز کا ریکارڈ فراہم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ محمد اپنی مرضی کے خلاف جانے والے افراد، چاہے وہ اہل خانہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ جبر اور ان پر کنٹرول رکھنے والے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چین یوکرائن کے معاملے پر روس کی حمایت نہ کرے، نیٹو کا انتباہ۔ نیٹو نے چین کو انتباہ دیا ہے کہ وہ یوکرائن کے معاملے پر روس کی حمایت نہ کرے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرائن کے معاملے پر نیٹو رہنماؤں کا اجلاس بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہوا ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر مغربی ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے، جبکہ اجلاس میں روس اور یوکرائن تنازع کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں اتحادیوں نے بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ اور سلواکیہ میں مزید 4 جنگی گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ چین کو روس کی حمایت نہ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے زور دیا ہے کہ روس کو G20 سے نکالا جائے۔ امریکی صدر نے اس دوران یورپی ممالک کو یوکرائنی پناہ گزینوں کے لیے $1 ارب دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ نیٹو رہنماؤں نے 4 نئے فوجی گروپوں کو سلواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور بلغاریہ میں تعینات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان فوجیوں کی تعداد عام طور پر 1000 سے 1300 فوجیوں کے درمیان تک ہوتی ہے، جبکہ 4 دیگر گروپ
बाल्टक रियासतों और पोलैंड में पहले से ही तैनात हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि सरबराही इजलास में नेटो रहनुमाओं ने यूक्रेन को केमियाई हथियारों के हमले से बचाने में मदद फराहम करने के लिए सामान भेजने पर रजामंदी भी जाहिर की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि फौजी इत्तेहाद केमियाई और जोहरी हथियारों के खिलाफ अपने दिफा को तेज कर रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन में ऐसे हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। दूसरी जानिब बरतानिया यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मजीद 65 कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां लगा रहा है। पाबंदियों का निशाना बनने वालों में रूस का सबसे बड़ा निजी बैंक और एक खातून शामिल हैं, जिसके हवाले से बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो रूसी वजीर खारजा की सौतेली बेटी हैं। मॉन्स्टर मिसाइल के तजर्बे के बाद शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां। शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासविंग के तजर्बे के बाद अमेरिका ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। शुमाली कोरिया के इस नए बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को मगरबी तजिया निगार ने मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दिया है। अमरीकी खबर रसां इदारे ने अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस के बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमरीका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल हमले के बाद रूस की 5 कंपनियों और शुमाली कोरिया के एक फर्द पर पाबंदियां आयद की हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन कंपनियों और फर्द ने शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुबैना तौर पर हसास पुर्जे मुल्क में मुंतकिल किए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की भी दरखास्त की है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूबीन के मुताबिक जुमे को मुतवक्के है। अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने जापानी और जनूबी कोरियाई हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें उन्होंने शुमाली कोरिया को मुनासिब जवाब देने और आपस में दिफाई ताउन बढ़ाने पर बात की है। दूसरी जानिब खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम तमाम फरीकों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हैं और हमें मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया का हवा स्विंग 17 मिसाइल पहली मरतबा अक्टूबर 2020 में मंजर-ए-आम पर आया था, जिसे तजियाकारों ने मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दिया था। इस मिसाइल का पहले भी कामयाब तजर्बा किया जा चुका है, जिस पर शुमाली कोरिया के पड़ोसियों और अमेरिका की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया था। ईरानी पासदारान इनकिलाब की कतर के दिफाई शो में शिरकत अमरीका की मजम्मत। ईरान की फौज पासदारान इनकिलाब की कतर में होने वाले दिफाई शो में शिरकत पर खित्ते में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। अरब न्यूज के मुताबिक कतर में होने वाली डिफेंस नुमाइश में पासदारान इनकिलाब की जानिब से मिसाइल के मॉडल्स और दीगर हथियारों की नुमाइश की गई है, जबकि ईरानी कमांडर ने अपने बूथ में मुलाकातें भी की हैं, जहां एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया था जिस पर एक कश्ती की तस्वीर बनी थी जिसमें कमांडोज बैठे थे। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि हम मैरीटाइम नुमाइश में ईरान की मौजूदगी को मुस्तरद करते हैं। ईरान पूरे खलीजी खित्ते में मैरीटाइम के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। दूसरी जानिब कतर के सरकारी हुक्काम का कहना है कि पासदारान इनकिलाब को दोहा में होने वाली 3 रोजा नुमाइश के लिए दावत नहीं दी गई थी। तर्जुमान के मुताबिक इवेंट में शिरकत और पवेलियन का इंतजाम ईरान की वजारत खारजा की जानिब से किया गया था, जबकि पासदारान इनकिलाब को दावत नहीं दी गई थी। इवेंट के दौरान ईरानी वफद के अरकान अमरीकी बेड़े के पास से गुजरे और अतालवी बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीर बनाई और तुर्किश मशीन गनों का जायजा भी लिया। कतर में होने वाली दिफाई नुमाइश ने असला साज बैनुल अक़वामी कंपनियों की तवज्जो हासिल की है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे खलीजी रियासतों को फौजी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईरान के बूथ के सामने बने अमरीका के बूथ में असला साज कंपनी जनरल एटोमेटिक्स का MQ-9 ड्रोन मौजूद था, जो फिजाई निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें मैरीटाइम की निगरानी भी शामिल है। अमरीकी वजारत खारजा ने कंपनी को इख्तियार दिया है कि वो 18 ड्रोन मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब में फरोख्त कर सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त जवाब दे पासदारान इनकिलाब ने प्रॉक्सी जंगों के जरिए अपना दायरा बहुत बढ़ाया है, जिसमें यमन में हौसियों की कार्रवाइयां भी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब के तेल के ज़खायर पर हमले किए थे। लड़कियों के स्कूल न खोले तो तस्लीम नहीं करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का तालिबान को इंतबाह। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान को खबरदार किया है कि अगर वो लड़कियों के स्कूल दोबारा खोलने में नाकाम रहते हैं तो इन्हें आलमी सतह पर शनाख्त के उसूल और अफगान मईशत की तामीर नो की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। तालिबान ने पहले ऐलान किया था कि अफगानिस्तान में बुत से आई स्कूलों में लड़कियों के लिए तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन बाद में अपने फैसले को यह कहकर तब्दील कर दिया था कि लड़कियों के लिए
لیے मुनासिब यूनिफॉर्म का फैसला न होने तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर तालिबान ने यह फैसला फौरी तौर पर वापस न लिया तो अफगान अवाम के साथ साथ मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के इम्कानात और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तालिबान के अज़ाइम को गहरा नुकसान पहुंचेगा। चीनी वजीर खारजा भारत के गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा इस्लामाबाद और काबुल के दौरों के बाद अचानक नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने चीनी हम मनसब से 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तब तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक मुतनाज़ सरहद पर बड़ी तादाद में चीनी फौजी तैनात हैं। ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरहदी कशीदगी को मामूल के ताल्लुकात से नहीं मिलाया जा सकता। जयशंकर ने साफियों को बताया कि बीजिंग हुकूमत इस दौरे के बारे में कबल अज वक्त इत्तलात नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा दोनों वज़राए खारजा ने मगरिब के मुतालबात के बावजूद अपने दोस्त मुल्क रूस के यूक्रेन में हमलों की मजम्मत करने से इज्तिनाब किया है। भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात के बाद वांग जी ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी मुलाकात की है। रूस यूक्रेन पर हमले के बाद चीन पर एक बोझ बन चुका है पेंटागन। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद मास्को बीजिंग के लिए एक बोझ बन चुका है। पेंटागन में दिफाई पॉलिसी के अंडर सेक्रेटरी कोलन काहल ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन में किया है उसके बाद वो चीन के लिए किसी स्ट्रेटेजिक बोझ से कम नहीं है। रूस और चीन ने पिछले महीने ही मगरबी ममालिक के खिलाफ मजीद ताउन का अहद करते हुए यूक्रेन और ताइवान के मामले पर लामहदूद शराकतदारी का ऐलान किया था। इसके अलावा काहल ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के नतीजे में रूस अस्करी, माशी और जोग्राफियाई तौर पर कमजोर होकर पहले से भी ज्यादा अलग थलग हो जाएगा। कोलन काहल के मुताबिक अब इस बात का इम्कान भी ज्यादा है कि रूस यूक्रेन में गैर गाइडेड बमों और तोपखाने के इस्तेमाल में इजाफा कर सकता है क्योंकि उसके पास दुरुस्त तौर पर हदफ बनाने वाले गाइडेड मिसाइल खत्म हो रहे हैं। रूस को मुकम्मल जंग का सामना है रूसी वजीर खारजा। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि मगरिब की जानिब से रूस को एक मुकम्मल जंग का सामना है। उनके मुताबिक रूस के खिलाफ एक हकीकी हाइब्रिड जंग का ऐलान किया गया है जिसका मकसद रूस और रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन पर 1 महीने से जारी रूसी हमलों के नतीजे में मगरबी ममालिक ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद लारोफ का कहना है कि रूस तनहा नहीं है और उसके दुनिया में कई दोस्त हैं, इत्तेहादी और शराकतदार भी मौजूद हैं। उन्होंने मास्को में इस बात पर भी जोर दिया है कि कई ममालिक रूस पर आयद मगरबी पाबंदियों की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे और रूस उनके साथ ताल्लुकात बरकरार रखेगा। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।